ओम शांति। आज के बाबार 12-12-2020 मुरली। आज की मुरलीर विशेष महावाक्य बाबा बोलছেন जे बच्चे তোমাদেরকে নিজের যদি উঁচু তকদির বানাতে হয়, ভাগ্য যদি বানাতে হয়, তাহলে তোমরা যার সঙ্গেও কথাবার্তা বলছো বা কাউকে দেখছো তো বুদ্ধিতে সবসময় যেন বাবার সঙ্গে লগন থাকে, বাবাকে ভিতরে ভিতরে ইয়াদ করো, বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গেই যেন থাকে। এবং বাবা বলছেন যে তোমাদের এই পূর্ণ দুনিয়ার সঙ্গে কোনো কানেকশন যেন না থাকে, পূর্ণ দুনিয়ার সঙ্গে কোনো দিল লাগিও না। আজকে বাবা বললেন যে বারবার যাচাই করো যে তোমার মধ্যে এখনও কি কি অবগুণ রয়েছে, আর সেই অবগুণগুলোকে যত তাড়াতাড়ি বের করো। বা হচ্ছে তোমাকে একদম সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে এবং অন্তিম অবস্থাতে এক বাবা ছাড়া যেন কিছুই মনে না আসে, এরকম তোমার স্থিতিকে বানাতে হবে। বাবার ইয়াদ দ্বারাই তোমার আত্মা এত শতপ্রধান হবে। তো যোগের চার্ট খুব বাড়াও, খুব যোগ করো, যোগ দ্বারাই তোমার ইনকাম হবে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে যখনই তোমরা কাউকে জ্ঞান শোনাচ্ছ তখন বলো যে আমরা যে স্কুলে পড়াশোনা করি সেটার নাম হচ্ছে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বা সেটা সবথেকে বড় বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এটাকে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সাল স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি বলা যেতে পারে। মানে সারা বিশ্বের আত্মা এখানে এসে এই জ্ঞান নিতে পারে। তো বাবা বলছে এই জন্য নাম দেবা যে বিশ্ববিদ্যালয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে ঈশ্বরীয় লাগানো দরকার। তার আগে প্রজাপিতা অবশ্যই বলো, যে প্রজাপিতার দ্বারা ভগবান এসে গীতা জ্ঞান দিচ্ছেন বা জ্ঞান পড়াচ্ছেন আমাদেরকে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে দুনিয়া খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে, খুবই বাজে হয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে সমস্ত কিছু খারাপের দিকে যাচ্ছে। বাবা বলছে কোনো রাজাই থাকবে না, চারিদিকে প্রজাতন্ত্র আরম্ভ হয়ে যাবে, প্রজার রাজত্ব প্রজার উপরে চলবে। যেহেতু তোমাদের নতুন রাজতন্ত্র স্থাপন হচ্ছে, তার আগে পুরো পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্র হবে, কোনো রাজাই থাকবে না। এই জন্য দুনিয়ার হালত খুবই খারাপ হবে। তো তোমাদেরকে খুবই সাবধানে থাকতে হবে, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গ দোষ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। তারপরে বাবা বললেন যে চার্ট চেক করো যে আমার এখন কিভাবে আমার স্থিতি আছে, আমার দ্বারা কোনো ভুল হচ্ছে না তো, আমি বাবার শ্রীমতের বাইরে কোনো কাজ করছি না তো, আমি কোনো লোন পানি হচ্ছি না তো, কারোর সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করছি না তো। এরকম করে বাবা বলছে নিজের চার্ট চেক করো এবং নিজেকে নিমিত্ত ভাবো। বাবার এই যজ্ঞের মালিক হচ্ছেন বাবা, বাবা সব কিছু দেখছেন, বাবা সামলাচ্ছেন, আমরা মাত্র নিমিত্ত। তো এইভাবে বাবা আমাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধারণার উপরে আজকে খুব অ্যাটেনশন দেওয়া করিয়েছেন। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। বাবা বলছে নিজের ভাগ্য যদি উঁচু বানাতে হয় তাহলে তুমি কারোর সঙ্গে কথা বলছো, কাউকে দেখছো, কিন্তু তোমার মনের যোগ বা বুদ্ধির যোগ যেন এক বাবার সঙ্গে থাকে। আজকের প্রশ্ন, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? বাবা বলছেন নতুন দুনিয়ার স্থাপনার যে নিমিত্ত বাচ্চারা, তাদের জন্যে বাবার কি ডাইরেকশন দেওয়া আছে? তো বাবা উত্তরে বলছেন, बच्चे तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। বাবা বলছেন তোমাদের এই পূর্ণ দুনিয়ার সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই, নিজের দিল এই পূর্ণ দুনিয়ার সঙ্গে লাগাও না। जांच करो हम श्रीमत के बर खिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। বলছে যাঞ্চ করো যে নিজে শ্রীমত অনুসারে আমরা চলছি তো, বা শ্রীমতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করছি না তো। रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं, রুহানি সেবার জন্য আমরা সহযোগী আছি, নিমিত্ত আছি। আজকের গীত হচ্ছে ভোলেনাথ সে নিরালা कोई और नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, यह गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं।
बच्चे जानते हैं बाप हमारी ऊंची तकदीर बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है या घाटा होता है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। बाबा बोलছেন যে দেখো যে আমার মধ্যে কি অবগুণ আছে, এই অবগুণ যদি থাকে তাহলে আমার উঁচু ভাগ্য বানাতে ঘাটা পড়ে যাবে। तो बाबा बोलছে से अवगुण के ताड़ाताड़ी बेर करो। इस समय हर एक को अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। तुम समझाते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो। বলছে এক বাবা ছাড়া যদি তুমি কাউকেই স্মরণ না করো তাহলে লক্ষ্মী নারায়ণ খুব তাড়াতাড়ি হতে পারবে। कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाबार एकदम कड़ा श्रीमत जे आमार छाड़ा कारो संगे तुम्हें दिल लगाओ ना एवं दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा न हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। বলছে এমন কোনো কর্ম করো না যে রাজ্য পদ থেকেও তোমরা নিচে নেমে যাও এবং প্রজাতে চলে যাও, আবার প্রজা থেকেও নিচে दास दासी हो जाओ, एरकम कोनो कर्म करो ना। अपनी जांच करते रहो। यह समझाने बाप बिगड़ तो कोई दे न सके। बाप को टीचर को याद करने से डर रहेगा, ऐसा न हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है, कहाँ कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं हैं। जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए। बाबा बार बार बोलছেন যে बार चेक करो যে আমরা শ্রীমতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করছি না তো যে কর্ম বা যে কথা তোমার বিবেককে ভালো লাগছে না সেটা করো না। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। বলছে ভালো মন্দকে তো এখন বোঝার ক্ষমতা এসে গেছে। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश हैं। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। বলছে समय খুবই নাজুক হয়ে যাচ্ছে, দুনিয়া একদম দিনদিন খারাপের দিকে যাচ্ছে, আরও খারাপের দিকে যাবে। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं, तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो। বলছে কোনো आसुरी गुण যেন ভিতরে না থাকে। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हैं। বলছে বাবার সেবা তুমি যদি লেগে থাকো তাহলে তোমার খুব উন্নতি হবে। समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलता रहे। सेंटर खोल सर्विस को बढ़ाएं। यह रतन सब तुम्हारे पास हैं।
বলছে সারাদিন এইটাই চিন্তন করো যে কি করে আমরা আরও বাবার সেবা বাড়াবো, আরও নতুন নতুন সেন্টার খুলবো। জ্ঞানরত্ন তো তোমাদের কাছে আছেই। तो बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में है, सृष्टि के अंत आदि मध्य अंत को जानते हैं, पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्मना कोई बुरा कर्म न हो, उसकी पूरी जांच करनी है। तो बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, उसमें ही रमन करते रहना है। सेंटर खोल, बहुतों को निमंत्रण देना है। बहुत से सेंटर खुले, अनेक के निमंत्रण दो। प्रेम से बैठ समझाना है, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत ज़रूरी है। स्थापना होती है संगम पर, यह भी मनुष्यों को पता नहीं है कि अब संगम युग है। बाबा बोलছেন যে মানুষ জানেই না যে এটা সঙ্গম যুগ আছে বা কলিযুগের শেষ আর সত্যযুগের প্রারম্ভ। तो यह भी समझाना है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है, सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे ही नहीं। বলছে বাবা ছাড়া কেউ তোমাকে এটা বলবে না যে নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে বা নবযুগ স্থাপন হচ্ছে। तो बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं, अकेले तो नहीं करेंगे ना, सब बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उद्घाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची से रिबन काटेंगे। বাবা বলছেন যে বাইরের লোকেরা ওরা কি ধরনের উদ্ঘাটন করে, উদ্বোধন করে, তারা এসে একটা রিবন কেটে দেবে। यहाँ तो वह बात नहीं है, इसमें तुम ब्राह्मण कुल भूषण मददगार बनते हो। বলছে আমি যে নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছি, উদ্বোধন করতে এসেছি, তো এটা না যে তোমাদেরকে এসে রিবন কাটতে হবে বা ফুল বর্ষণ করতে হবে। বলছে এখানে হচ্ছে যে তোমাদেরকে মন বচন কর্ম দ্বারা পবিত্র হতে হবে, দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে, বাবার সঙ্গে যোগ লাগাতে হবে, নিজের বিকর্ম বিনাশ করতে হবে। এইসব করা মানে বাবার আমরা मददगार बादशाह। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूझे हुए हैं, पतित दुनिया को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया के स्थापना करने की युक्ति है। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। भल शिव की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु यह जानते नहीं कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं ना, हे भगवान, हे राम। तो राम भी निराकार को ही कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं। বলছেন ভক্তি মার্গে হে রাম বলা হয়, তো রাম একটা হচ্ছে পতিত পাবন রাম, মানে যে আত্মরূপী সীতাকে পবিত্র করছে সে হচ্ছে পতিত পাবন বাবা রাম, আরেকটা হচ্ছে ত্রেতা যুগের রাজা রাম। তো বলছে হে রাম, মানুষ যখন বলে এটা শিব বাবার জন্যই বলে, পতিত পাবন পরমাত্মা রামের জন্যে বলে। রাম মানা যে সকলের দিলকে আরাম দিচ্ছে সে হচ্ছে রাম। परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, बाप ने आकर निकाला है। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, यह तो है बेहद की बात। বলছে যেমন কুয়াশা হলে মানুষ রাস্তা দেখতে পারে না, তো এখন ভক্তি মার্গের এত মতান্তরে মানুষ একদম মানে অন্ধকারে পড়ে গেছে যে কোনটা মানবে না, তারাও যেমন কুয়াশায় পড়ে গেছে। तो बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं, तुमको भी बाप ने फील कराया हम किस जंगल में पड़े थे, यह भी अब पता पड़ा है, यह पुरानी दुनिया है, इसका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं,
बाप को पुकारते रहते हैं, तुम अभी पुकारते नहीं हो। बाबा বলছেন মানুষ তো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না এবং ভগবানকে তারা স্মরণ করেই যাচ্ছে, কিন্তু এখন আমরা ভগবানকে ওইভাবে ডাকবো না, আমরা তো বাবাকে পেয়ে গেছি। तो अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, सो भी नंबरवार। जो जानते हैं वह बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो। বলছেন যে আমার ইচ্ছা যে সব জায়গায় বড় বড় সেন্টার যেন খুলে যায়। चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बड़ो बड़ो सेंटरे बड़ो बड़ो चित्र लगाओ जाते मानुष दूर थेके भालो करे बुझते पारे। बच्चों के लिए मैप्स जरूर चाहिए। যেমন ছোট বাচ্চাদেরকে বড় বড় ম্যাপ দ্বারা বোঝানো হয়, সেরকম বাবা বলছে যে তোমরা এরকম বড় বড় চিত্র বানাও। बताना चाहिए यह भी स्कूल है, यहाँ के यह वंडरफुल मैप्स हैं। उन स्कूलों के नक्शे में तो होती है हद की बातें, यहाँ है बेहद की बातें। বাবা বলছেন যে স্কুলে যে ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ বা ভারতবর্ষের ম্যাপ দেখানো হয় তো সেখানে ছোট্ট রূপে জিওগ্রাফি দেখানো হয়েছে। বাবা বলছে এখানে তো বেহদের কথা, যে আমাদের পুরো ব্রহ্মাণ্ড 3 ভাগে বিভক্ত আছে, একটা পরমধাম ব্রহ্মলোক, একটা সূক্ষ্মলোক আর একটা साकार मनुष्य लोक। तो एटा बेहदेर हिस्ट्री जोग्राफी। तो यह भी पाठशाला है ना, जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की यह ईश्वरीय पाठशाला है। लिखा हुआ ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। बाबा বলছেন যে वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लेखा दरकार। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितनी बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। बाबा বলছেন যে শুধু ईश्वरीय विश्वविद्यालय लेखो ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लेखो, तो प्रजापिता अक्षर अवश्य दो। लिखत पूरी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि यह ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को भी दिल में रहता है हम फलाने सेंटर को जाकर उठाएं, ठंडा पड़ गया है, उनको जगाएं। क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। बाबा বলছেন যে যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা তাদের দিলে এটা আসা দরকার যে আমরা যে সেন্টারগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে সেখানে যাই, ভাই বোনদেরকে জাগাই। তো মায়া আছে, সবাইকে মায়া ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে, তো তাদেরকে আবার জাগাতে হবে। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है, तुम युद्ध के मैदान में हो। माया माथा मूंड कर उल्टे तरफ न ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। বলছে তোমরা এখন যুদ্ধের মাঠে আছো এবং মায়ার অপোজিশনে দাঁড়িয়ে আছে। তো মায়া কোনোভাবেই তোমাদেরকে যে কোনোভাবে তোমাদেরকে বাবার শ্রীমতের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তো নিজেকে খুব সামলাও। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े सब युद्ध के मैदान में हो, पहलवान को माया के तूफान हिला न सके। বলছে যে যারা पहलवान হবে তারা মায়ার तूफाने हिलबे ना। वह अवस्था भी आने वाली है। बाप समझाते समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई हैं, राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे। বাবা বলছে সময় খুবই খারাপ আসছে, চারিদিকের পরিস্থিতি আরও খারাপ যাবে এবং যতগুলো রাজবংশ চলছে বা রাজাই চলছে সব শেষ হয়ে যাবে,
সবাইকে রাজ্যপদ থেকে নামিয়ে দেবে এবং সারা দুনিয়াতে সারা পৃথিবীতে প্রজার রাজত্ব প্রজার উপরে চলবে। फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। বলছেন তোমাদের সত্যযুগের নতুন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, রাজবংশ স্থাপন হচ্ছে, তার আগে কলিযুগে রাজতন্ত্র পুরো শেষ হবে, তারপরে সত্যযুগে নতুন রাজতন্ত্র আরম্ভ হবে। তো এখন সারা পৃথিবীতে পঞ্চায়েতি রাজ্য চলবে। तो पंचायती राज्य होता जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े, स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाप की याद में रह औरों को भी यह समझाना है। देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं बनने का है। বাবা বলছেন এটা না যে সবাই এখন আত্মাভিমানী হয়ে গেছে যারা বাবার বাচ্চারা, বলছে না সবাই এখন পুরুষার্থ করছে। तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है बाप को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है, मूल बात है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, यह भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघन डाल भुला देती है। বাবা বলছেন যে याद দ্বারাই তো তোমরা শতপ্রধান হবে, তো বাবার याद के भूलो ना, किंतु माया एटातेই विघ्न डाले। रात दिन यह तात रहे हम बाप को याद कर सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई की भी याद न पड़े। বলছে এমন বাবার সঙ্গে পাক্কা তোমাদের যোগের স্থিতি হয়ে যায় যাতে অন্তিম সময় এক বাবা ছাড়া আর কেউ যেন মনে না পড়ে। प्रदर्शनी में भी पहले पहले यह समझाना चाहिए, यह है सबका बाप, ऊंच ते ऊंच भगवन। सबका बाप पतित पावन सदगति दाता यह है, यही स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते ही हैं संगम युग पर, बाप ही राजयोग सिखाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है। আবার আজকে বাবা বলছেন যে সবার আগে বাবারই পরিচয় দাও। समझाना पड़ता है, भक्ति है अथाह, ज्ञान तो है एक। বলছে ভক্তির অনেক রকম গল্প কিন্তু জ্ঞান মার্গের তো একটাই কথা। तो बाप कितनी युक्तियाँ बच्चों को बतलाते रहते हैं। पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाए यह भी किसी को पता नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। বলছেন দাপর যুগকে সঙ্গম যুগ বলা হবে না। তো দাপর যুগে ভগবান গীতা জ্ঞান দিতেই পারে না, কারণ যদি দাপর যুগে গীতা জ্ঞান দিত তাহলে গীতা জ্ঞান দ্বারা কলিযুগ আসতো না, ধর্মের যুগ আসতো না। এই জন্য বাবা বলছেন আমি দাপর যুগে আসিও না। युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं। বাবা বলছে প্রত্যেক যুগে যুগে তো আমি আসি না, আমি কল্পে কল্পে আসি। মানে একটা চক্র যখন কমপ্লিট হয় আর একটা নতুন চক্র যখন আরম্ভ হয় তখন আমি আসি। এটাকেই সঙ্গম যুগে যুগে বলা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক যুগে ভগবান আসেন না। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझ पड़े हैं, सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं।
कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर मुरली पूरी सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने, इसलिए सन्मुख आते हैं। अनेक बाचारा बोले ना जे बाबार मुरली तो আমরা টেপ দ্বারা শুনছি, আর যদি डायरेक्ट গিয়ে যদি শুনি তাহলে কত आनंद আসবে। तो बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। বলছে অনেকেরা আসে প্রদর্শনী বোঝে, জ্ঞান বোঝে, আবার বাইরে গিয়ে সব কিছু ভুলে যায়। सिमरन नहीं करते, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। বলছে যারা একবার এসে বাবার জ্ঞান বুঝে গেছে অথচ তারা আসছে না, তো তাদের पीठ करो, মানে আবার তাদের কাছে যাও, তাদেরকে আবার বোঝাও। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधों में लग जाते हैं, इसलिए मधुबन का गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहाँ भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। बाबा बोलছেন তোমরা সবাইকে বোঝাও गीतार भगवान के। आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे, अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। भक्ति छोड़ दी है ना। বলছেন আগে আমরাও মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে মাথা নমন করতাম, এখন তো ভক্তি আমরা ছেড়ে দিয়েছি। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बुद्धि में सारी नॉलेज है, और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं। तुम समझाते हो, वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए ना, संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे कि यह हिंदू हैं। अब तो वह निशानियां भी चली गई हैं। বাবা বলছেন আগেকার ব্রাহ্মণদের মাথায় একটা টিকি থাকতো বা জনেও থাকতো, তখন জানা যেত যে হ্যাঁ এরা হিন্দু। এখন তো ব্রাহ্মণরাও কিছুই রাখে না। अब तो वह निशानियां भी चली गईं। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की है। योग बल से स्थतो प्रधान बन रहे हो तो अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसुरी गुण न हो, लून पानी नहीं बनना है। यह तो यज्ञ है ना। বাবা বলছে কোনো রকম আসুরি গুণ তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে, লুন পানি हो ना। বাবার এটা যজ্ঞ, यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है। बाबार যজ্ঞ থেকে সবারই पालना होच्छे। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यहाँ यज्ञ का मालिक तो शिव बाबा है। बाबा বলছে যেমন বাইরে যজ্ঞ যারা করে তাদেরকে সামলানোর জন্য ট্রাস্টি থাকে, নিমিত্ত থাকে, আর এখানে তো বাবার এই যজ্ঞের মালিকই হচ্ছেন বাবা, ডাইরেক্ট শিব বাবা। यह ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। बाबा ब्रह्मा बाबा होच्छेन ट्रस्टी। यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है। বলছে তোমাদের যা দরকার সেটা বাবার যজ্ঞ থেকে নাও, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा। বলছে কারো থেকে কিছু নিয়ে ইউজ করো না, ব্যবহার করো না, তাহলে তার কথা মনে পড়বে, তার সঙ্গে তোমার হিসাব কিতাব তৈরি হয়ে যাবে। এই জন্যে বাবার যজ্ঞতে समर्पित হয়েছে তো বাবার যজ্ঞ থেকেই নাও। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। বলছে নিজের উন্নতির জন্য বাবার সেবায় সবসময় ব্যস্ত থাকো। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। बाबा যে জ্ঞান রত্ন দিয়েছেন সেটা নিজে ধারণ করো আর অন্যকে করাও। दो, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। বলছে নিজের যাচাই করো যে আমার মধ্যে কোনো आसुरी गुण तो नहीं। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लोन पानी तो नहीं बनते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर है। आज के वरदान, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाली ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा বলছেন যেটা বলছো সেটাই ভাবো এবং সেটাই করো, তো এই তিনটেকে সমান যে বানাবে সেই হচ্ছে জ্ঞানী তু आत्मा। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। বলছেন এখন বানপ্রস্থ অবস্থাতে যাওয়ার সময় কাছে এসে গেছে, এই জন্যে নিজের সমস্ত কমজোরিগুলোকে বা আমার ভাব, আমিত্ব ভাব বা ব্যর্থের খেলা এগুলোকে সবাইকে সমাপ্ত করো এবং যেটা ভাবছো সেটাই বলো, সেটাই করো, তিনটেকে সমান করো, তবেই বলা হবে জ্ঞান स्वरूप आत्मा। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। বলছেন যারা এরকম জ্ঞানী স্বরূপ আত্মা তাদের প্রত্যেক কর্ম, সংস্কার, গুণ, কর্তব্য বাবার সমান হবে। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, তারা কখনো ব্যর্থের বিচিত্র খেলা করতে পারবে না। सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे, তারা সবসময় বাবার মিলনের খেলায় বিজি থাকবে। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे, তারা নিজে সবসময় বাবার সঙ্গে মিলন করবে এবং সবাইকে বাপ সমান বানাবে। আজকের স্লোগান, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। বলছে সেবার উমঙ্গ উৎসাহতে কি হয়, ছোট ছোট রোগ অসুখ সব দূর হয়ে যায়, মার্জ হয়ে যায়, এই জন্যে বাবার সেবায় সবসময় বিজি থাকো। ওম শান্তি।